करुचे सुगम academy को. So in this class we are going to discuss about theories of inflation, which is given in Unit-3 core paper 3 introductory macroeconomics plus the second semesters. So let's begin the class. So theories of inflation. So basically the theories of inflation seeks to explain the causes and sources of inflation. In addition, we'll also discuss various measures suggested by the economists to cure inflation. So theories of inflation माने होची inflation को नहीं कि जहाँ भी सब theory माने develop करिची माने reason behind inflation काहे कि होई थाए एवं ता पाई ताको eradicate करिया पाई बा कमाया पाई हमको कौन करिया पाई पड़िवो तो सेतरे suggestions माने भी रहिची ता सहित reason माने रहिची. So first theory is about the classical theory of inflation. So the classical theory of inflation was developed by Irving Fisher. So classical theory of money रे हमें देखिथिले कि the money supply is the cause of increase in price level. So according to this theory, inflation occurs in direct proportion to increase in money supply given the level of output. तो इन्फ्लेशन दरदाम माने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार जोटा इरविंग फिशर देइछन्ती क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आमे पढ़िथिले तो सेतरे से कहिसन्ती कि जदी मनी सप्लाई जदी बढ़ुछि ताहेले सेटा इन्फ्लेशन करिथाय कीपिंग द लेवल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट. आउटपुट को कांस्टेंट रखी कि जदी हमें मनी सप्लाई जदी बढ़े देबा ताहेले प्राइस लेवल बढ़ी जिवो. So the classical theory of inflation is derived directly from the Fisher's quantity theory of money. According to Fisher's quantity theory, MV is equal to PT. एटा हम आगु देखिथिले quantity theory of money रे M is the quantity of money supply, V is the velocity of money, P is the price level and T is the total amounts of goods and services produced or total amount of transactions. So P is equal to जदी हम कर दबा कोन हे जिवो MV by T. P is equal to MV by T. तो ये V को से कांस्टेंट नहीं छंती वेलोसिटी एते परिवर्तन हुए नहीं कांस्टेंट थाए ता सहित जदी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को जदी हमें कांस्टेंट नहीं जिबा so we can find the relationship between money supply and price level. So when money supply increases, the price level increases. According to the classical economist, money supply is the only cause of inflation. Monetary factors पाई monetary expansion पाई money supply माने money supply price level बढ़े थाए according to the classical economist. So the percentage जदी नहीं जिबा हमें so m plus v is equal to p minus y. Okay, m small m हो जे percentage change in money supply, v है percentage change in velocity of money, p is the percentage change in price level और y हो जे percentage change in goods and services. So p is equal to हे जिवो m plus v minus y. जेते बेले हम percentage रे करू छी सेते बेले माइनस हे जिवो. So m plus v minus y. तो v और y तो normally constant रहउची. So the percentage change in price is equal to percentage change in income. तो समाने कहि छन्ती there is a proportional relationship between quantity of money supply and price level. जदि money supply जदि 10% जदि बढ़िला then this price level will also increase by some 10%. Okay, because there is proportional relationship. प्राइस जेते बढ़िबो क्वांटिटी मनी सप्लाई जेते बढ़िबो प्राइस सेते ही बढ़िबो पूरा इक्वल बढ़िबे. ये जदि 20% बढ़िले सेपटे प्राइस लेवल भी 20% इंक्रीज हबो बोली समाने कहितले द क्लासिकल इकोनॉमिक्स. सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट money supply increase in money supply is the only cause of inflation. So the classical theory of inflation was criticized as it failed to explain the cause how excess money supply results inflation. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर से एक्सप्लेन करि पारले नहीं से जस्ट खाली कहि देले कि मनी सप्लाई बढ़िले प्राइस लेवल बढ़ि जिवो केमिति बढ़िवो से ही कुड नॉट एक्सप्लेन. That is the reason behind the criticism. Then next criticism is the theory neglected the other real factors which influence price level. अन्यान्य जो फैक्टर्स गुड़ा रही उपादान मान रही ताकू से नेग्लेक्ट करिसेंती जेमती प्रोडक्शन हैला जब प्रोडक्शन जदि कम हुए से भी आम प्राइस इनक्रीज हुए
कि जो इनपुट फैक्टर्स इनपुट मानकर जदि प्राइस जदि बढ़ी जाव से भी प्राइस बढ़ सो अदर फैक्टर्स वर नेग्लेक्टेड बाय द classical economist or Irving Fisher. Okay, so this is about the classical theory of inflation. Next we'll study about neoclassical theory of inflation. So this neoclassical theory of inflation was developed by the Cambridge economist, which is also known as cash balance approach, जोटा हमें quantity theory of money रे पढ़ी छे. So this Cambridge economist, difference between the two versions of inflation theory is that while classical school consider increase in supply of money as the cause of inflation, Cambridge school postulated increase in demand for money as the cause of inflation. तो क्लासिकल मानकर मतरे कौन थिला सप्लाई ऑफ मनी को से माने इंपोर्टेंस देइछंती बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी देयर इज इन्फ्लेशन बट अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर मनी इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन से माने सप्लाई को इंपोर्टेंस देइछंती माने डिमांड को इंपोर्टेंस देले डिमांड फॉर मनी. सो अकॉर्डिंग टू द neoclassical economist, MD is equal to KPY, where MD is the demand for money, Q is the real output, P is the general price level, and K is the constant proportion of total income people want to hold in the form of money. K होची जेते टंका लोक माने कैश रखिबा पई चाहुचंती. So this P is equal to हेजिबो MD is equal to K MD by KQ. P is equal to MD by KQ. तो Q और K को जदि कांस्टेंट रखीदबा ताहले डिमांड फॉर मनी एंड द प्राइस लेवल आर रिलेटेड proportionally related, or increase in demand for money will increase the price level according to the Cambridge economist. So this equation implies that general price level increase in proportion to increase in demand for money given K and Q. K and Q को constant रखी कि यदि demand for money यदि increase होची then price level will also increase. In case K and Q are variable, जदि दुईटा को आम चेंज भी कर दे ताहले द रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन रेट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी एंड द सम ऑफ रेट ऑफ चेंज इन के एंड क्यू. दुईटा को जदि आम चेंज भी जदि कर दे के और क्यू को जदि कांस्टेंट रखी जदि वेरिएबल भी करूचे ताहले कोन होची द गिवन वैल्यू ऑफ के द रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी ऑब्टेन्ड एज के को जदि कांस्टेंट रखा होची ताहले P इज इक्वल टू M बाय R. P टा होची price level, rate of price rise or inflation we can say. M is the rate of increase in money demand, को rate रे जो change होचे money demand, and R is the rate of rise in real income. तो real income जदि अधिक बढ़िले कौन होगा प्राइस लेवल कमी जीवो किंतु M जदि बढ़िला मनी सप्लाई डिमांड फॉर मनी जदि बढ़ुची देन प्राइस लेवल भी बढ़िबो किंतु R जदि अधिक हला द रेट ऑफ इंक्रीज इन रियल इनकम जदि प्रोडक्शन जदि अधिक होची ताहले प्राइस लेवल कौन हम कमी जीवो किंतु जदि डिमांड फॉर मनी जदि अधिक हला माने गुड्स कंजम्पशन बढ़ुची कंजम्पशन जदि बढ़िले कौन हम दिस प्राइस लेवल विल इंक्रीज. तो डिमांड फॉर मनी को इम्पोर्टेंस देते द क्लासिकल neoclassical economist. So the major drawback of the theory is that it fails to explain why does demand for money increase. डिमांड फॉर मनी कहीं इनक्रीज होता है कहीं वृद्धि होता है ताकू से माने एक्सप्लेन कले नहीं. तो से को क्रिटिसाइज करागला द नियोक्लासिकल थ्योरी. नेक्स्ट इज द केनेशियन थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन. So according to John Maynard Keynes, inflation is the result of gap between aggregate demand and aggregate supply. तो इस जगह से इम्पोर्टेंस देले एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को. एग्रीगेट सप्लाई को अधिक गुरुत्व न देके से डिमांड फॉर गुड्स और एग्रीगेट डिमांड को से अधिक गुरुत्व देइछंती. ही फोकसेस ऑन द रियल फैक्टर्स लाइक इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, increase in investment demand etc. those influence aggregate demand and price. तो ये सब जिनस जदि बढ़ुची कंज्यूमर स्पेंडिंग जदि बढ़िला MPC जदि बढ़िला मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माने लोक माने अधिक जदि कंज्यूम करया पई जदि चाहिए
इन्वेस्टमेंट डिमांड जदि बढ़िला ताहले कौन हम एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हम ता सहित प्राइस इंक्रीज हम. So the gap between aggregate demand and aggregate supply is called inflationary gap. तो aggregate demand और aggregate supply भितर जो difference create होची because of increase in demand, that gap is called inflationary gap. According to the Keynesian theory of inflation, a price rise due to excess demand only at full employment level is inflationary. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल माने जो रिसोर्स सब यूटिलाइज है मैक्सिमम गोटे इकोनॉमी मैक्सिमम जते प्रोडक्शन करिया कथा से लेवल रे जदि प्रोडक्शन होची आउ जदि डिमांड बढ़िला ताले अधिक हम प्रोडक्शन करि परिबा नाही हमर कैपेसिटी भितरे ही अछि कैपेसिटी रे ही प्रोडक्शन करूचे तो से केस रे कोन हबो दैट विल क्रिएट इन्फ्लेशन जते हम मैक्सिमम कैपेसिटी जदि अछि ताठो जदि अधिक डिमांड जदि हला then we cannot produce goods and there will be a gap created between aggregate demand and aggregate supply. That gap is called inflationary gap. So inflation takes place only at full employment level. So according to the Keynesian theory of inflation, inflation को जगह रे हबो at full employment level जोटी रिसोर्स फुल यूटिलाइज है कि मैक्सिमम कैपेसिटी जोटी प्रोडक्शन होची से केस रे केवल इन्फ्लेशन हबो. ओके सो डायग्राम माध्यम रे हम देखि परिबा. सो इट इज एग्रीगेट सप्लाई इज द 45 डिग्री लाइन जते भी प्रोडक्शन होची गोटे इकोनॉमी रे दैट इज 45 डिग्री लाइन. ओके माने एग्रीगेट सप्लाई से का सहित इक्वल हुए इनकम सहित इक्वल होई थाए जते भी हमें सप्लाई करछे जते भी प्रोडक्शन होचे दैट इज आवर इनकम. देन एग्रीगेट डिमांड इज C plus I plus G. C होचे हमर जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, I हैला जो इन्वेस्टमेंट, G होचे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो रही छि ए सब को मिसे देला हमर एग्रीगेट डिमांड. ओके एग्रीगेट डिमांड तो E1 थिला इक्विलिब्रियम where the aggregate supply and aggregate demand curve intersect and Y1 is the full employment level of equilibrium. Y1 होचे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम. तो जदि गवर्नमेंट कौन कले स्पेंडिंग बढ़े देले ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट्स फ्रॉम AD1 टू AD2. AD1 रु AD2 को शिफ्ट हैला बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट कौन कला बहुत सारा प्रोजेक्ट माने आनिले लोक माने एम्प्लॉयमेंट पाइले किंबा टैक्स को कम कर देले लोक मान के खर्च अधिक कले लोक माने. ओके तो यहपरी भाव में कौन है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ला स्पेंडिंग बढ़ा फल कौन हुए एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट है. तो एग्रीगेट डिमांड जो अपवर्ड शिफ्ट होची गोटे डिफरेंस क्रिएट है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड भितर. तो ये जो एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट करी अपवर्ड आग AD1 थिला AD1 रु AD2 को जिते जाइए से कौन है डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन दिस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. तो ये एग्रीगेट डिमांड है गला E2Y1 है एग्रीगेट डिमांड कारण से जगह ही एग्रीगेट डिमांड कर्व टच करी एग्रीगेट सप्लाई है E1Y1 है एग्रीगेट सप्लाई. तो ये भीतर गोटे डिफरेंस किए है बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड अधिका है सो दिस गैप इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप. तो ये जो गैप रोची बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दिस इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन. अकॉर्डिंग टू कैन्स दिस इन्फ्लेशनरी गैप रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशन. तो जो डिफरेंस क्रिएट होची बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दैट डिफरेंस मोटिवेट्स और एनकरेज इन्फ्लेशन. Okay, so this is about inflationary gap and inflation theory of Keynes. Next is monetarist view on inflation. Monetarist माने basically मिल्टन फ्राइडमैन थे the founder of this monetarism or monetarist economist he was. So like the classical economist, the modern monetarist hold the view that general level of price rise only and only due to increase in money supply. तो से माने भी क्लासिकल माने जो जिनस कही से जिनस को से माने दोहराई कि कौन हो प्राइस जो राइज होची प्राइस जो इंक्रीज होची दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई ओनली.
So Milton Friedman, the leader of monetarist school, crystallized the monetary thought on inflation. According to Milton Friedman, inflation is always and everywhere a monetary phenomena. इनफ्लेसन टा सब बेले गोटे मॉनिटरी फेनोमेना माने इंक्रीज इन मनी सप्लाई पाई ही इनफ्लेशन होता है बोली से कही जोटा क्लासिकल सहित पूरा मैच कला क्लासिकल्स मैंने जहाँ कही मॉनिटरी सहित पूरा सामान है. इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय ए मोर रैपिड इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी देन इन आउटपुट. तो आउटपुट ठारू जदि मनी सप्लाई जदि अधिक बढ़ुची सेते बेले आमर इनफ्लेशन हम. So this theory is also known as modern fisherism. जेहेतु क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी देइथिले किए इरविंग फिशर तो तांकर ना अनुसार याको मॉडर्न फिशरिज्म भी कहा हुए. दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न फिशरिज्म कारण जो क्लासिकल्स मैंने जहाँ कही से जिनस को मैंने सपोर्ट कर. बट सम वेरिएशन फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी किंतु सबू जिनस सामान ना किछिटा वेरिएशन रही. तो कौन वेरिएशन रही देखिए. सो देयर इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल. तो क्लासिकल्स माने जो कही कि मनी सप्लाई जिते बढ़ो जदि 10% जदि बढ़िले प्राइस लेवल भी 10% बढ़ो. किंतु मॉनिटरिस्ट माने कौन कहले डायरेक्ट रिलेशनशिप अच्छी माने मनी सप्लाई बढ़िले प्राइस बढ़ो किंतु समान प्रोपोर्शन हो भी पारे हो न पारे कहले. जदि मनी सप्लाई यदि 20% बढ़ुची मनी सप्लाई ताठू कम बढ़ी पारे ताठू अधिक बढ़ी पारे किंबा समान बढ़ी पारे एमती ना कि पूरा सेम लेवल रे बढ़िबो. तो सेटा मॉनिटरिस्ट माने कहले. दे डू नॉट एग्री विथ क्लासिकल प्रोपोजिशन दैट चेंज इन मनी सप्लाई चेंजेस द प्राइस लेवल डायरेक्टली एंड स्ट्रेट अवे. Monetarists such as Friedman argue that a reduction in money stock does in practice first reduce the level of output and only after have an effect on prices. तो क्लासिकल्स मैंने जो कहते मनी सप्लाई बढ़िले कि प्राइस चेंज हम डायरेक्टली किंतु ये कहले कि डायरेक्टली हेनी इनडायरेक्टली माने कौन कर ऑटोमेटिक आउटपुट को कम करदेव. आउटपुट कम हेले प्रोडक्शन कमी जाव प्रोडक्शन कमिले प्राइस बढ़िबा बोली कहले. तो इनडायरेक्टली बहुत सारा अदर फैक्टर्स माने रही जद्वारा कि प्राइस बढ़िबा बोली से कहले. Then third is unlike the classical economist, modern monetarists distinguish between the short run and long run effects of change in stock of money. तो क्लासिकल्स माने कहते कि प्राइस केतेबेले बढ़िबा जदि मनी सप्लाई बढ़िला शॉर्ट रन रे भी रहिबो इफेक्ट लॉन्ग रन रे भी रहिबो. किंतु जो मिल्टन फ्रीडमैन मॉनिटरिस्ट माने कौन कहले शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इफेक्ट दुई प्रकार से माने कहले. दे आर्ग्यू दैट इन द शॉर्ट रन चेंजेस इन स्टॉक ऑफ मनी कैन डू हैव इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन रियल आउटपुट. जो मनी सप्लाई बढ़ुची शॉर्ट रन रे इफेक्ट रहिबो शॉर्ट रन रे प्राइस बढ़िबो बट इन द लॉन्ग रन चेंज इन मनी स्टॉक रिमेन न्यूट्रल टू द रियल आउटपुट. किंतु लॉन्ग रन रे से जिनस रहिबो नाही. लॉन्ग रन रे तार इफेक्ट अलग आसीबो. शॉर्ट रन रे केवल प्राइस लेवल बढ़िबो लॉन्ग रन रे प्राइस लेवल बढ़िबो नाही बोली से माने कहले. ओके सो ये तीनोटी जिनस डिफरेंस रहिला बिटवीन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड मॉनिटरिस्ट इकोनॉमिस्ट. बाकी सब जिनस समान. नेक्स्ट वन इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑन इन्फ्लेशन. मॉडर्न थ्योरी माने कौन कले जिते भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट माने जो आसिले से माने बोथ फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस देइछन्ते. सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड वेरिएशन इन एग्रीगेट प्राइस लेवल इज कॉज्ड बाय वेरिएशन इन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. तो जहाँ भी प्राइस लेवल होची दुई जिनस दायी माने डिमांड फैक्टर्स भी दायी रोचे ता सहित सप्लाई फैक्टर्स भी दायी रोचे बोली मॉडर्न थ्योरी ऑन इन्फ्लेशन. माने केन्स का थ्योरी ता सहित क्लासिकल समस्त थ्योरी को मिसेकी मॉडर्न थ्योरी है. द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन इज इन फैक्ट ए सिंथेसिस ऑफ क्लासिकल्स एंड केन्सियन थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन. तो क्लासिकल और केन्सियन को जब मिसई देवा से जो तत्व बाहर सेटा को लेकिन से प्रिंसिपल सेटा को लेकिन मॉडर्न थ्योरी कारण दुईटा जिनस को ये इम्पोर्टेंस देछि सप्लाई को भी ता सहित डिमांड को भी.
The demand side factors are called demand pull factors and supply side factors are called cost push factors. तो डिमांड पाई जोटा होची डिमांड पुल फैक्टर्स, सप्लाई पाई जोटी होची सेटा कॉस्ट पुश फैक्टर्स. तो बोथ आर इम्पोर्टेंट इन द मॉडर्न थ्योरी, बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड. तो डिमांड रे जो सब फैक्टर्स गुड़ा इन्फ्लुएंस करुचे दोज आर कॉल्ड डिमांड पुल फैक्टर्स और सप्लाई साइड जो सारा फैक्टर्स गुड़ा रही दोज आर कॉल्ड कॉस्ट पुश फैक्टर्स. तो फर्स्ट हमें देखा डिमांड पुल फैक्टर्स. सो व्हाट इज डिमांड पुल फैक्टर्स? जोटा डिमांड इनक्रीज करुचे जमी इनक्रीज इन मनी सप्लाई बढ़िले डिमांड बढ़िबो, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी जीवो. इनक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिवन टैक्स रेवेन्यू को कांस्टेंट रखी जदि गवर्नमेंट रो स्पेंडिंग जदि बढ़िला लोक मान को इनकम जनरेट हेले कौन हम डिमांड बढ़िबो. कट इन टैक्स रेट विदाउट चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट को जदि आम कम करदेवा सेते बेले भी कौन हम डिमांड बढ़िबो, लोक मानकर डिस्पोजेबल इनकम अधिक रहिबो, अधिक खर्च करें. इनक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कॉजिंग अपवर्ड शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट फंक्शन. जदि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जदि बढ़ाई देले ताले लोक मान बहुत काम पाइबे, काम पाइले कौन हम इनकम बढ़िबो, इनकम बढ़िले डिमांड बढ़िबो. डाउनवर्ड शिफ्ट इन सेविंग फंक्शन, डाउनवर्ड माने होची कमी जीवा. तो सेविंग जदि लोक मानकर कमीगला, कंजम्पशन जदि अधिक कले सेते बेले डिमांड बढ़िबो. ओके, तो डिमांड बढ़िले हम. अपवर्ड शिफ्ट इन एक्सपोर्ट फंक्शन, जदि एक्सपोर्ट जदि बढ़ीगला अलग देश को जदि जिनसर रप्तानी जदि अधिक हुए से केस रे कौन हम ऑटोमेटिक कौन हम आम देश में सर्टेज देखादेव, द्रव्यर सर्टेज डिमांड अनुसार सप्लाई हेबो नाही. तो सही केस रे हम. डाउनवर्ड शिफ्ट इन इंपोर्ट फंक्शंस, इंपोर्ट जदि कमी जीवो अलग देश द्रव्य जदि आम कम आनुचे से भी सर्टेज होबार चांस अच्छी. तो ये सब जिनस कौन हुए डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है. ओके, बिकॉज ऑफ दिस increase in demand in comparison to supply there is demand pull inflation. तो डायग्राम माध्यम रे हम देखि परिबा एटा होची एग्रीगेट सप्लाई कर्व. तो इनिशियली एग्रीगेट डिमांड ए जगह थिला, जदि एग्रीगेट डिमांड जदि बढ़ी जाउची कीपिंग सप्लाई फिक्स्ड कौन हम ऑटोमेटिक देयर विल इंक्रीज इन प्राइस लेवल. आगु E1 रे इक्विलिब्रियम थिला बढ़ी की E2 रे हला इंक्रीज इन प्राइस लेवल फ्रॉम P1 टू P2. तो कहीं एग्रीगेट सप्लाई को कांस्टेंट थी कि रखिकी जदि एग्रीगेट डिमांड जदि वृद्धि होची सेते बेले प्राइस लेवल इंक्रीज होची बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन और डिमांड पुल फैक्टर्स वी कैन से. नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. गोटे आम डिमांड साइड रू देखिले मॉडर्न थ्योरी रे, आ गोटे होचे सप्लाई साइड. तो सप्लाई साइड रे रही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रे तीनोटी जिनस रही वेज पुश इन्फ्लेशन, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन एंड सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन. सो फर्स्ट वन इज वेज पुश इन्फ्लेशन. A wage rise may not necessarily cause inflation. A wage rise higher than the rise in labor productivity causes an undue rise in prices. This is called wage push inflation. तो जदि वेज बढ़ुची मजूरी जदि बढ़िला सेते बेले प्राइस बढ़ी थाए किंतु आमे ताकू इन्फ्लेशन कहिबा नाही. केते बेले इन्फ्लेशन हबो माने प्रोडक्टिविटी अनुसार न बढ़ी कि जदि वेज जदि अधिक बढ़िला जते प्रोडक्शन होची ताठू जदि वेज जदि अधिक दियाला, लेबर यूनियन सपोज डिमांड कले हाई वेज तो प्रोड्यूसर कौन देवाई बाध्य वेज अधिक देवाई. तो सही केस रे कौन हम दरदाम बढ़िबो कारण लोक मानकर इनकम बढ़ी जाउछे विदाउट इंक्रीज इन आउटपुट. आउटपुट न बढ़ी जदि इनकम बढ़ी जीवो सेते बेले वेज पुश इन्फ्लेशन हबो. ओके, प्रोडक्टिविटी ठारू अधिक जदि वेज बढ़िला दैट इज कॉल्ड वेज पुश इन्फ्लेशन कारण लोक मानकर इनकम बढ़ी जाउछे आउटपुट सेम रहउछे. ओके, तो वेज पुश इन्फ्लेशन हबो. नेक्स्ट इज प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन. The use of monopoly power by monopolistic and oligopolistic firms to raise their price to enhance their profit margin. This has reactionary effect on other prices which lead to inflation. तो जो oligopolist firm है कि monopolistic firm जदि रही माने कम जदि विक्रेता अच्छा
किंबा जो सेलर मानकर बायर मानकर ऊपर जदि तांकर कौन रही दबाव जदि रही माने समस्त को डिपेंडेंट जदि करिसेंती सही केस रे कौन करिवो दरदाम बढ़ाई पारिबे तो निजर प्रॉफिट पाइबा पई जते बेले दरदाम वृद्धि करा होची दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। तो प्रॉफिट पाई भी अधिक जदि प्रॉफिट जदि आम देखा ताहले सबु जिनसर सेमती दाम बढ़िबो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। द लास्ट वन इज सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। सप्लाई शॉक माने होची सप्लाई पूरा हठात कमी जीवो जमती सपोज नेचुरल कैलामिटीज है फ्लड हो गला को जगह बन्या हो गला कि मरुड़ी हो गला कि हठात वर्षा हो गला तो सही केस रे कौन हम प्रोडक्ट माने सब वेस्ट हुए माने हार्वेस्टिंग कम हम हार्वेस्ट कम हम तो सही केस रे कौन हम सप्लाई डेफिशिएंसी देखा देबो इन रिलेशन टू डिमांड। सो दैट इज कॉल्ड सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड ड्रॉट हेलस्टोन ओके ये सब जिनस जदि प्रोडक्शन जदि कमी जुए जाए से बेले भी आमर इन्फ्लेशन होता है। सो दीज आर दी कॉस्ट पुश फैक्टर्स। तो डायग्राम माध्यम रे यदि आम देखा दिस इज एग्रीगेट डिमांड फिक्स अच्छी आगु AS1 थिला एग्रीगेट सप्लाई तो Y1 रे इक्विलिब्रियम थिला बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स कॉस्ट पुश फैक्टर डिमांड सेम थाए कि जदि आमर सप्लाई जदि कमी जीवो ताहले कौन हो प्राइस लेवल बढ़ुची P1 रु P2 आगु E1 रे थिला इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड भितर नेक्स्ट कौन होइछि हमर एग्रीगेट सप्लाई कमी जाइछि AS2 को एग्रीगेट सप्लाई कर्व shifts from AS1 to AS2 so the price level increases from P1 to P2 तो P1 रो P2 जो प्राइस लेवल इंक्रीज है दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई कीपिंग डिमांड फिक्स डिमांड को फिक्स रखिकी जेहेतु सप्लाई कमी जाइए प्राइस लेवल इंक्रीज है आगु E2 थिला इक्विलिब्रियम एबे U1 को इक्विलिब्रियम हो सो दिस इज बिकॉज ऑफ इन डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई without change in aggregate demand. So this is about the modern theory of inflation. तो modern theory रे दुईटा जिनस को इम्पोर्टेंस देइछन्ती डिमांड पुल फैक्टर्स को ता सहित कॉस्ट पुश फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस देइछन्ती। So this is about the theories of inflation. I hope the class might be helpful for you. If the class is helpful for you then please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.